Assalamualaikum to everyone. So I welcome all of you. This is your beautiful channel Loan Academy, and I am Shaukat Physics. Today we will discuss about the some important terms related to kinematics. Stay with me. Start with the important terms related to kinematics. Kinematics is a branch of mechanics that deals with the study of motion of the bodies with actual cause of motion is called as a kinematics. ठीक है, तो kinematics क्या है? ये branch mechanics का जिसमें हम deal कर लेते हैं with the study of the motion of the bodies, or we say that it is defined as the geometry of the motion. Geometry of motion is called as a kinematics. The first important term in kinematics that is rest. That is rest. What is rest? What is rest? A body is said to be in rest when it doesn't change with its position with respect to its surroundings. ठीक है, तो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में होगा जब वो अपनी चेंज या पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा with respect to its surrounding. With respect to its surrounding is called a rest. A body is said to be in rest. A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to surroundings in due course of time. In due course of time is called a rest. Is called a rest. ठीक है. Example, two pillars of a building are in rest with respect to each other. जो दो बिल्डिंग्स के पिलर जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं. ठीक है, with respect to each other. With respect to each other. This is the first example of a rest. Or we say that now another example of this whiteboard. How can we say that this board is said to be in rest? A whiteboard is said to be in rest. It is an object. This is a object. ठीक है, whiteboard क्या है? एक object है. तो हम कह सकते हैं कि whiteboard is said to be an object when it does not change its position with respect to in due course of time. In due course of time is called a rest. Example, two rockets moving to parallel each other with the same velocity. बच्चों यहाँ पर जब हम दो रॉकेट्स भेजते हैं स्पेस में, ठीक है, when the two rockets, जब दो रॉकेट्स मूव कर लेते हैं parallel with each other with a same velocity or in rest with respect to each other, this is another example of the rest. जब हम दो parallel, ठीक है, when we moving the two parallel rockets with each other, जब हम दो रॉकेट्स को parallel each other मूव करवाते हैं with the same velocity, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जो दो रॉकेट्स होंगे, ठीक है, the two rockets are said to be in, यहां पर जो दो रॉकेट्स हमारे पास ये क्या है? They are in rest. An electron is in rest in the spherical shell with respect to the nucleus. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, दिखे ये क्या होता है? This is a positive part of this atom. And this is an electron. यहाँ पर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है with respect to the nucleus. With respect to nucleus. And electron is in rest. An electron is in rest with respect to the nucleus. With respect to the nucleus. ठीक है. All passengers in moving a bus are in rest with respect to each other. जब हम बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, वहां पर जो भी पैसेंजर्स होते हैं मूविंग बस में, ये किस में होते हैं? रेस्पेक्ट दे आर इन रेस्ट with respect to each other. With respect to each other. And these are the examples of the rest. Sir, what is rest? A rest, a body or a object is said to be in rest when it does not change its position with respect to surroundings with the due course of time. With the due course of time. इसकी एग्जांपल हमने बोला जो भी पैसेंजर्स बस में होते हैं, they are all in rest with respect to each other. An electron, ठीक है, an electron is in rest. An electron is in rest with respect to the nucleus. With respect to the nucleus. तो दो रॉकेट्स हम भेज लेते हैं, ठीक है, टू रॉकेट्स आर मूविंग पैरेलल विद ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी और इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. जब हम दो रॉकेट्स को मूव करवा लेते हैं पैरेलल विद ईच अदर विद द सेम वेलोसिटी, तो वहां पर जो दो रॉकेट्स हमारे पास होते हैं, दे आर ऑल इन रेस्ट. दे आर बोथ टू रॉकेट्स आर इन रेस्ट. फोर्थ, यहाँ पर जो टू पिलर्स ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, ये भी क्या है? रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. और वी से दैट द टू मार्कर्स आर सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन they doesn't change with respect to its position with respect to the time, or we say that in due course of time. So we say that two markers are said to be in rest. This is total about the rest. Now the another point, that is the motion. What is motion? What is motion? A branch of science deals with the study of the motion is called as a dynamics. Is called as dynamics. ठीक है, तो बच्चों डायनेमिक्स में एक्चुअली हम क्या कहते हैं? We does not study about the actual cause of motion. About the actual cause of motion, or we say that motion it is also a part of mechanics. A body is said to be in motion if it change its position with respect to its surroundings in due course of time. तो एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी तब मोशन में आ सकती है जब हम उसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जब टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि a body is said to be in motion. A body is said to be in motion. एग्जांपल यहाँ पर है टू रॉकेट्स मूविंग पैरेलल ईच अदर इफ अपोजिट डायरेक्शंस आर इन मोशन. यहाँ पर हम अगर दो रॉकेट्स को मूव करवा लेते हैं विद द सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो हमारे पास दो रॉकेट्स होंगे वो दो रॉकेट्स किस में है? दे आर इन मोशन.
नेक्स्ट, ऑल पैसेंजर्स इन द मूविंग बस और इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीज। जब हम गाड़ी में बैठते हैं सीट पे, ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीज, ट्रीज के रेस्पेक्ट में हम किस में है, मोशन में। एंड बिल्डिंग्स ऑन द रोड, इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में तब होगा इन न्यूक्लियस विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस इन द पी सब शेल, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम लेते पी शेल, वी हैव द पी शेल KLMN, वेयर आर द 4 शेल्स, ठीक है, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स, ठीक है, तो केमिस्ट्री में इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो मोशन में होता है विद रेस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस इन द पी सब शेल, इन द पी सब शेल। तो यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है, नोट, अ बॉडी कैन साइमल्टेनियसली बी इन द रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। बच्चों एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है साइमल्टेनियसली एज वेल एज इन मोशन, डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन पॉइंट। तो ये किस पे डिपेंड कर लेता है, एक कंपैरिजन पॉइंट, और उस कंपैरिजन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस कंपैरिजन पॉइंट इज कॉल्ड, इस कंपैरिजन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, एंड दिस comparison point is called as a reference point. Example, two rockets moving in a parallel to each other with the same velocity or in rest with respect to each other and are in motion with respect to the ground station. तो यहाँ पर जब हम दो रॉकेट्स को मूव करवा लेते थे, ठीक है, with the same velocity, तो सेम वेलोसिटी के साथ जब दो रॉकेट्स पैरेलल जाते थे स्पेस में, तो वहां पर वो किस में थे, रेस्ट में। जब वो ग्राउंड स्टेशन पे वापस आए इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन मोशन, दे आर इन मोशन। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स, दैट इज वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट टू कंपेयर रेस्ट और मोशन। तो रेस्ट या मोशन को कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक और वी से दैट हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मस्ट है, क्यों, ताकि हम यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन को क्या कर सके, डिस्क्राइब। तो रेस्ट एंड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है, ताकि हम एक रेस्ट बॉडी या मोशन, जो एक बॉडी जो मोशन में होती है रेस्ट में, ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ कंपेयर करने के लिए हम लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज एन इमेजिनरी फ्रेम ऑफ द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमारे पास एक एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इमेजिनरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इमेजिनरी फ्रेम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग विद अ सिंगल टाइम कोऑर्डिनेट, जिसमें हम सिंगल टाइम कोऑर्डिनेट दैट इज डिनोटेड बाय द टी, ठीक है, ऑल मीटिंग एट द ओरिजिन ओ। यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस दे मीट एट अ पॉइंट ओ एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। हेंस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ द थ्री पोजीशंस, कोऑर्डिनेट्स एंड सिंगल टाइम कोऑर्डिनेट। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कंसिस्ट होता है तीन परपेंडिकुलर लाइंस का, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। और इसमें क्या होता है, सिंगल टाइम कोऑर्डिनेट, सिंगल टाइम कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप पोजीशन देखोगे कोऑर्डिनेट, व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा हमें। जब हम x की जगह यहाँ पर x वैल्यू में देते थे 1, तो y का जो निकलता दैट इज 0। 1 x में जब हम 2 दे देंगे तो y का वैल्यू 0। 3 का जब हम देते हैं x में तो y का वैल्यू क्या आता है 0। z में जब हम 0 दैट इज 0 0 0, तो तीनों पॉइंट पे क्या है 0 वैल्यू, ठीक है। t 1 2 3, तो टाइम क्या है दैट इज 1 2 एंड 3, दिस इज द t, दिस इज t, ठीक है। एज देयर इज नो एनी अदर एब्सोल्यूट रेस्ट पॉइंट इन द यूनिवर्स, तो पता चला कि यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या जरूरत पड़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सो वी नीड टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दिस इज टोटल अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल लोन एकेडमी पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।